नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। दिल्ली में आज 2 दिन से काफ़ी सर्दी हो रही है। सो ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू दिस इंडियन डेयरी एसोसिएशन सेमिनार ऑन सेफ डेयरी प्रोडक्ट्स challenges for dairy industry and administrator. So on behalf of IDEA, I welcome all of you. We are very delighted that in today's session we have got dairy sectors, the best of the dignitaries and the participant. I'm very happy to welcome Dr. Dheet Singh, the director of our prestigious National Dairy Research Institute, Karnal. Also our ex-president, Dr. G.S. Rajoria ji, my colleague, the vice president, Shri A.K. Khosla ji, zonal chairman, Shri S.S. Maan and Dr. J.B. Prajapati ji. All the dignitaries of the dais, all the participants. Well, आपने शुरू में मुझे बोलने को इजाज़त दी है, and that too on a topic of safer dairy products. Basically, this is a topic more apt for the scientists and practitioners. हम देखिए marketing and sales वाले हैं, तो ठीक है, तो because I am going to start it, so whole day you will be listening the best of dairy scientists, practitioners, and we also got privilege of from the Government of India, from SSI, the food regulators, the policy makers. Let me tell you why we are keeping this seminar. We have been basically advised or guided by the ministry that a lot of reports are coming against dairy, that dairy is not safe, dairy is very cruel, dairy is not nutritious. So what is dairy industry doing? Why we are not reacting? And then we thought, like, why not we keep a meeting or such type of seminar where all the stakeholders can be invited. And at one platform we meet, discuss that what can be done to further enhance the image of dairy or milk. And IDA has taken this task that we have to ensure that in the food category, a dairy which has got a, I can say, is #1 rank among all the food. So that is intact and further enhanced. See, let us see for any human being or for any consumer, why food has to be safe. Firstly, let me tell you, food is not only the source of nutrition, we all know. You say, for body, health, energies, everything. But more than in India especially, where we have got more than 110 million dairy farmers, food or grower of food, it is a source of livelihood. So food safety is not only essential from consumer point of view, but also from farmer's point of view, because it's a source of livelihood. And also, food is India's biggest category among all the industry. Today, it is around 50 lakh crore. There's no other industry bigger than this. And also, one of the fastest growing industry without any decline. Double-digit growth in food industry is coming. So, and common man, when he or she is consuming food, because they find it is a daily, compulsory and affordable source of nutrition. When any consumer buy there, because it's a daily necessity, you can't avoid it. And besides this nutrition, food also gives taste, a very mental satisfaction. आप खाना खा के आप बोला था शांति हो गया. Otherwise you will not be able to focus. And a very healthy body and no doubt energy. And food is one product which is consumed across all age groups,
across all income brackets, across all geographies. बाकी आप कोई भी कैटेगरी ले लेंगे सब जगह नहीं मिलेगी. फूड इज ऐसी चीज जो सब जगह होती है. And because it is the fastest growing category, food, and because of India 140 crore people, which will be 165 crore, India is the biggest and fastest growing market. So naturally it has been also threatened. इसमें फूड में नेचुरली हर चीज जब ज़्यादा बिकना जाता तो उसके फेक आ जाते हैं, उसके एडल्ट्रेंट आ जाते हैं, उसको नेगेटिव पब्लिसिटी वाले आ जाते हैं. एंड इंडियन डेयरी इंडस्ट्री विच इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ फूड कैटेगरी, अगर देखा जाए जो 50 लाख करोड़ की फूड की कैटेगरी है, इसमें डेयरी इज अराउंड 11 लाख करोड़. एंड आउट ऑफ 11 करोड़ आल्सो द बिगेस्ट ऑर्गेनाइज कैटेगरी. अगर 50 लाख करोड़ की टोटल ऑर्गेनाइज मार्केट इज 7 लाख करोड़, मतलब ऑर्गेनाइज पैक्ड ब्रांडेड फूड. और 7 लाख करोड़ में से 3.5 लाख करोड़ तो डेयरी है. सो बिगेस्ट थ्रेट इन द फूड कैटेगरी ऑफ दिस, what I explained is about the fake or adulteration or negative publicity. Dairy has been targeted. और उसके लिए रीजन भी है कि in food also, if you see, the one category which has got maximum penetration across India, across is the milk. इंडिया में 95% से ज़्यादा हाउस होल्ड पेनिट्रेशन डेयरी का है. फूड तो सब खाते ही हैं, 100% है, बट डिफरेंट फूड होते हैं. पर डेयरी ऐसी चीज़ है जो 95% हाउस होल्ड में जानी जाती है. और आप देखें अगर पिछले 50 साल में फूड की प्रोडक्शन या कंजम्पशन में ग्रोथ की जाए, क्योंकि पिछले 50 सालों में हमारा आवर पॉपुलेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2.5 times, आवर फूड प्रोडक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 4 times. एंड जो हमारा सीरियल का प्रोडक्शन है, जो वीट पैडी वगैरह है, उसका पिछले 50 साल में प्रोडक्शन और कंजम्पशन 2.8 times मल्टीप्लाई हुआ है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोइंग एट द, पिछले 50 साल में 5.5 times मल्टीप्लाई हुआ है. दूध 10 times. सो वेरी गुड ग्रोथ. सिमिलरली बाकी एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट, चाहे वो पोल्ट्री हो विच इज 23 times, और फिशरीज इज 12%. सो इसीलिए जो कैटेगरी में सबसे बड़ी कैटेगरी है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, तो उसी में ही फेक और एडल्टरेटेड प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा रहा है. अगर आप फ्यूचर की बात करें कि फ्यूचर क्या रहेगा डेयरी का या फ्यूचर क्या फूड रहेगा, तो लेट मी टेल यू वेरी ब्रीफली कि व्हाट आर द बेसिक कंज्यूमर ट्रेंड्स इन फूड और डेयरी आर बीइंग नोटिस्ड बाय एनीबॉडी. वन इज, आई मेंशन यू दैट consumers are upgrading them from carbohydrate based diet to जो cereals based थे, to more of protein and fat rich diet, and that too mainly animal source, चाहे वो दूध हो, चाहे पोल्ट्री हो, चाहे अंडा हो, चाहे दूसरे फिश हो, एक्वा हो. But one thing is very true कि food में whatever trends come, whatever new foods come, whatever food are going, the three things will never change in food. And all consumers look for those three things. And what are those three things? First is the taste, second is nutrition, and in India, which is very important, is the affordability. So any food, कल को भी रहना है, 50 साल पर भी रहना है, 100 साल के बाद भी रहना है, 1000 साल की, अगर वो टेस्टी है, न्यूट्रिशियस है और अफोर्डेबल है, तो इट हैज़ गॉट अ फ्यूचर. बाकी आजकल जो सबसे ज़्यादा फूड में चेंज आ गया कि नाउ पीपल हैव started believing and heavy trust in packed and branded products. थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा था, बट कोविड के बाद बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ. एंड ऑल्सो वन चेंज इज नाउ, आपको ब्रांडेड पैक तो चाहिए, बट नाउ कंज्यूमर हैज स्टार्टेड ट्रस्टिंग मोर लोकल ब्रांड्स, मोर रीजनल ब्रांड्स. पहले फूड में तो था कि मुझे इंटरनेशनल ब्रांड चाहिए या नेशनल, नहीं, अभी कस्टमर को लोकली प्रोड्यूस्ड, लोकली पैक्ड एंड लोकली मेड अवेलेबल चाहिए. सो जो नेशनल ब्रांड्स हैं उनको भी यही प्रोजेक्ट करना पड़ता है कि कैसे वी कैन प्रोजेक्ट की दी माय ब्रांड इज लोकल. एंड ऑल्सो अफोर्डेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नेचुरल एंड प्योरिटी. पीपल वांट मोर नेचुरल, लेस ऑफ प्रोसेस. एंड food is not only sold now through general trade, it is sold from modern trade, quick service restaurant. होरेका होटल रेस्टोरेंट इज बिकम ए वेरी बिग सेगमेंट फॉर फूड. आज 20 से 22% कोई भी अगर आप कैटेगरी देखिए, चाहे स्पेशली इन डेयरी, 20 से 22% कंजम्पशन इज ओनली होरेका, होटल रेस्टोरेंट कैंटीन सेगमेंट.
और ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रोथ आ रही है फूड में, पैक्ड में, मैक्सिमम ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम Tier 2, 3, 4 एंड स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस. मेट्रो में सैचुरेशन है, पर सब ब्रांड्स की छोटे शहरों में, छोटे गांव में ग्रोथ होने से, दैट इज वेयर लोकल ब्रांड्स आर ग्रोइंग, because these local brands are able to reach to the smaller, and also because these are smaller places, छोटे SKU, छोटे पैकिंग की. So this is what is happening, and I feel if this trend is going to happen, and sitting here, we are all the custodian of dairy value chain. कोई फार्मर है, कोई दूध प्रोड्यूस करता है, कोई डेयरी कोई प्रोसेस करता है, कोई इक्विपमेंट्स देता है, कोई उसकी मार्केटिंग करता है, कोई उसकी टेस्टिंग इक्विपमेंट्स देता है, कोई कैटल फीड के लिए देता है, बट वी ऑल आर द पार्ट ऑफ डेयरी वैल्यू चेन. सो ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी हैव टू इंश्योर दैट द फेथ एंड ट्रस्ट ऑफ 1.4 बिलियन कंज्यूमर्स ऑफ इंडिया इज केप्ट इंटैक्ट इन द डेयरी, क्योंकि उसको थ्रेटन किया जा रहा है, उस पर अटैक किया जा रहा है, तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है दैट इज नॉट डाइल्यूटेड. एंड डेयरी पूरे फूड में अगर देखें तो एक ऐसी कैटेगरी है जो अभी भी कंज्यूम मोर लेस प्योर फॉर्म में की जाती है, जैसे प्रोड्यूस होती है वैसी की, चाहे वो दूध है, चाहे वो दही है, चाहे वो बटर मिल्क है, चाहे वो घी है, चाहे वो पाउडर है, चाहे चीज़ है, दिस ऑल प्रोडक्ट्स इन प्योर फॉर्म. कुछ इसके अंदर डाला नहीं जाता, दूध को प्रोसेस करके डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया जाता. सो दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फूड, बट ऑल्सो इस पे रिस्क भी ज़्यादा है कि लोगों का कि ये कैटेगरी बहुत बड़ी है, बहुत ग्रो कर रही है, तो जो लोगों की ग्रीड होती है कुछ लोगों की कि हमको ज़्यादा प्रॉफिट करना है, तो दे वांट टू रिप्लेस दिस एवर ग्रोइंग कैटेगरी बाय फेक प्रोडक्ट, बाय एडल्टरेटेड प्रोडक्ट्स और बाय टार्निशिंग द इमेज ऑफ द डेयरी है. तो हमको ये देखना है कि कैसे ये जो प्रोडक्ट, चाहे वो घी है, चाहे पनीर है, चाहे मिठाई है, इनके बारे में लोगों के, कंज्यूमर के माइंड में जो उसकी इमेज है वो पॉजिटिव रहे. अगर आपको बोला जाए कि बाजार में सब मिठाई मिलावटी है, घी मिलावटी है, पनीर मिलावटी है, दे वांट टू प्रोजेक्ट, सो नेचुरली यू नॉट एज ए कंज्यूमर यू नॉट बाई एनीथिंग, आप उस कैटेगरी से बाहर निकलना चाहेंगे. सो जो नेगेटिव पब्लिसिटी है, इट इम्पैक्ट्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ कैटेगरी, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एनी ब्रांड और एनी कंपनी. सो हमको ये देखना है कि जो ग्रीड लोगों की प्रॉफिट की अदर फूड सेक्टर में है, दैट शुड नॉट इम्पैक्ट दी आवर डेयरी कैटेगरी. एंड देखिए, अगर ये डेयरी कैटेगरी की इमेज सफ़र होती है डेयरी, तो इट इज़ नॉट ओनली कि आपने 140 करोड़ लोगों की न्यूट्रिशन को इम्पैक्ट किया, यू आल्सो इम्पैक्टेड दी 80 मिलियन फार्मर्स लाइवलीहुड. सो दैट इज़ वाई आवर ड्यूटी ऑफ डेयरी इंडस्ट्री इज़ कि कैसे किया जाए. एंड उसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं कि हमको देखना है कि जो डेयरी में ग्रोथ आ रही है, वी एक्सपेक्टिंग अराउंड 6%, वो कैसे उसको कंटिन्यूस पाथ पे रहे. वो तभी होगा कि एक तरफ कंज्यूमर कंज्यूम करता रहे और एक किसान को अच्छा प्राइस मिलता जाए, तो दे कंटिन्यू टू प्रोड्यूस मोर. अदरवाइज क्या होगा कि अगर एडल्ट्री घी, एडल्ट्री प्रोडक्ट आ जाएंगे तो क्या होगा, कंज्यूमर शिफ्ट कर जाएंगे या सस्ते लेंगे, जो प्रोसेसेस होंगे उनको प्राइस अच्छा नहीं मिलेगा, दे नॉट बी एबल टू गिव गुड प्राइस टू द फार्मर्स. अब फार्मर्स को नहीं देंगे तो फार्मर्स महंगी फीड लेके क्यों दूध का उत्पादन करेंगे. सो इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है, जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, वो नीचे गिर जाएगी. सो दिस थ्रेट ऑफ फेक प्रोडक्ट, एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट इज नॉट ओनली टू वन ब्रांड, इट इज टू दी होल इंडस्ट्री, और हमको उसको बचाने का जरूरी है. एंड क्या होगा, जो आज बड़ी बड़ी डेयरी कंपनीज हैं वो देखेंगे ठीक है डेयरी नीचे जा रही है, मैं दूसरे आई एम नॉट सेइंग एडल्टरेटेड प्रोडक्ट, आई कैन से सिंथेटिक प्रोडक्ट, रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स हम बनाना शुरू कर देते हैं, बेचना शुरू करते हैं अपने ब्रांड में, जो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज में ये हुआ है. डेयरी कंपनीज when they found that they are not able to protect the dairy category from the,
चाहे वो प्लांट बेस्ड हो, चाहे दूसरे फूड कैटेगरी हो, दे डाइवर्सिफाइड इनटू प्लांट बेस्ड टू मेंटेन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। पर उसके अल्टीमेटली सफर को हुए किसान, बिकॉज उनको प्राइस नहीं मिल रहा। सो दैट इज द इम्पैक्ट विच इंडिया कैन ऑल्सो हैव। एंड दूसरे जो अल्टरनेटिव है डेयरी के फूड के, चाहे वो प्रोटीन के हैं, चाहे वो फैट के हैं, दे विल गेन। सो हमारी ये ड्यूटी है फॉर ऑल द डेयरी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स कि कैसे जो कंज्यूमर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, डेयरी प्रोसेसर्स को, हमारी डेयरी वैल्यू चेन में जितने भी लोग हैं या पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको कैसे इसके बारे में अवेयर किया जाए, कैसे उसको बताया जाए कि व्हाट आर द लॉन्ग टर्म impact of such fake and adulterated or synthetic products on the livelihood and food security of India. And also हमको ये देखना है कि कैसे हम टेक्नोलॉजीज कैन प्रोवाइड करें। देखिए वी हैव टू, आज हम बोलते हैं एडल्ट्रेशन है गया, तो वी हैव टू प्रोवाइड सम सोल्यूशन आल्सो, हाउ अफोर्डेबल सोल्यूशन वेदर इट्स टेस्टिंग इक्विपमेंट्स और प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स कैन बी प्रोवाइडेड। एंड आई फील हम डिफरेंट एरिया से आते हैं डेयरी इंडस्ट्री में, हम डिफरेंट रीजन से आते हैं, बट when such type of attack happens, we have to protect dairy industry like we protect our religion. हम सबका एक ही रिलीजन है, वो है डेयरी। तो हमारे डेयरी के ऊपर का अटैक हो रहा है by these fake products, by these adulterated products, so we have to react like that. इसको ये नहीं जाने दो, हम मुझे क्या फर्क पड़ता है। And also provide affordable technology and guide policy makers to come out with the strict law enforcements so that such people can be punished. And I think इसमें idea का बहुत major role है, idea का। We have to see how the different idea के chapters हैं, zonal हैं, members हैं। We have to take initiative educating our area about this thing. And I can say by securing food or safe food, we'll continue to have the trust of consumer in the dairy category. हमारी farmers की income जो अभी stable and remunerative है dairy में, it will continue. We'll also take care of public health. We'll reduce the wastage and also comply with the food laws. But हर आदमी जो भी डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी वैल्यू से जुड़ा है, वी ऑल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड ग्रोइंग द डेयरी इंडस्ट्री और डेयरी वैल्यू चेन। धन्यवाद, नमस्कार।